unmute yourself, please. Pranvi, unmute yourself. Okay, ma'am. As I instruct you during PTM, you have to keep your videos on. As I ask you to on your video, you have to on your video, okay? In fact, during the class, sometimes today, in fact, we are having some issue with the network. It's okay for today, but for the next time, make sure whenever you join class, you have to join your class with your videos. Gagandeep, don't eat your pen. Yes, that's nice. Good. Hitakshi, why you are so far from the book and from the camera? That's good. Let's wait for 1-2 minutes more so that everyone join for the class. Then we start our class. Good, Avri. That's nice. You all join your class with your books, your notebooks, with pencils and pens. That's very nice. Good. So let's join your hand. Join your hand. Close your eyes. Join your hand. Close your eyes. And thank God that we properly completed the term 1 portion. Now our exams are coming. So dear God, please help us to remember everything that we have prepared from the last few months. Give us knowledge so that we remember everything. And start prayer for the study. Lord of all power and might. Of all power and mind. Give me wisdom and understanding today. Give me wisdom and understanding today. Let me grow in knowledge. Let me grow in knowledge. And bear fruit in active goodness. And bear fruit in goodness. Strengthen me with ample power. Strengthen me with ample power. To meet whatever comes. To meet whatever comes. With fortitude. With fortitude. Patience. Patience. And joy. And joy. And to give thanks to you. And to give thanks to you. In all things. In all things. Amen. Amen. Hope all of you clap for one student. You all need to clap for one student, and the name of that student is Riddhi Mahajan. Everyone clap for Riddhi Mahajan. All of you. Do you want to know why I asked you to clap for Riddhi Mahajan in the starting of the session only? Aradhya dear, from my side there is no network issue, my dear. Because among you all, Riddhi is the only student who properly close her eyes, join her hands, and properly pray. And I like it very much. Very good, Riddhi. Very good, Riddhi. Keep it up, bache. God bless you. That's so impressive. The way you pray, even the students are little bit moving here and there, sometimes opening their eyes, sometimes bringing their hands near their face. But Riddhi is the only student. She never moved from her place during whole prayer.
and properly she closed her eyes and joined her hand. Very good, Riddhi. Before we start our today's session, my dear students, 2-3 things are very important that I would like to discuss with you. The first thing is, today I have given you a schedule for your class test. As I have already mentioned in that schedule, कि आप लोगों के जितने भी क्लास टेस्ट होंगे, ओके मानवी, टुडे देयर इज सम प्रॉब्लम इन नेटवर्क. आप लोगों के जितने भी क्लास टेस्ट होंगे उसका शेड्यूल कौन से लेसन का साइंस का कब होगा, कौन से लेसन का इंग्लिश का कब होगा, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को स्नैप होमवर्क पर भेज दी है. प्रिपेयर योरसेल्फ वेल. मैं आप लोगों को गूगल फॉर्म में पेपर्स भेजूंगी और आपने मेरे को सेम डे विद इन 1 hour you have to complete that paper and submit it back to me. And this time I'm not going to notify on the same day that I don't receive this child paper, or that child paper. Next day I display that I don't get the paper of these students, so I will give 0 to these students in class. Okay, I hope I am clear. मुझे लगता है इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि मैंने क्लियर इंस्ट्रक्शंस आपके स्नैप होमवर्क पर भी दी थी. दूसरा, आपकी रीडिंग टेस्ट. Second, you are having your reading test and internal test. I have given you for reading test of English, you have lesson number 1 to 4. Lesson number 1 से लेके lesson number 4 तक मैं आपका reading test लूंगी. जैसे हमारी क्लास होगी 15 मिनट्स क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी और 15 मिनट्स के बाद मैं आपका रीडिंग टेस्ट लूंगी. जिस बच्चे को मैं अनम्यूट करूंगी वो बच्चा अनम्यूट होगा और जो लाइन जिस पेज से मैं उसे फर्स्ट 4 लेसन से पढ़ने के लिए बोलूंगी वो बच्चा पढ़ेगा. और साइंस के लिए मैंने आपको भेजा हुआ है, साइंस के लिए मैंने आपको क्लियरली भेजा हुआ है कि you have to prepare internal as you have given all the test of lesson number 1, 2, 3 and 4 of science already. आप लोगों ने ऑलरेडी 1, 2, 3, 4 लेसन का टेस्ट दिया हुआ है, तो मैं आपके इंटरनल क्वेश्चंस पूछूंगी, वो क्वेश्चंस जो आपकी बुक के लेसन के बीच में से होंगे. प्लीज रीड योर लेसन थॉरोली, प्रिपेयर योरसेल्फ वेल. Because in each paper, Rupakshi, will you please be quiet for the 10 minutes? After that, I will give you time. So that you prepare yourself well, you read your lessons thoroughly. There should be no confusion, no doubt, because you have already given the exams. That's why I have given you 1 to 4 lessons. इसीलिए मैंने आपको 1 to 4 लेसन इंटरनल असेसमेंट्स के लिए दिए, क्योंकि ऑलरेडी आप उनके पेपर्स दे चुके हैं. और जो अभी 5th 6th लेसन है वो आप प्रिपेयर करोगे टर्म 1 के लिए अच्छे से. पहले मैं उनके टेस्ट लूंगी, फिर मैं अगर टाइम बचता है तो मैं यूनिट 1 और यूनिट 2 के टेस्ट भी लूंगी. आई होप आई एम क्लियर. Rupakshi is having doubt, so Rupakshi, unmute yourself please. Yes, ma'am. Rupakshi. मैम जो साइंस का 4th चैप्टर है ना, हाँ जी बेटा. मैम उसके आपने ना लॉन्ग आंसर नहीं भेजे है. बिल्कुल बेटा, मैंने नहीं भेजे हैं. यस मैम. दैट इज टू लॉन्ग. वो आंसर आपके लर्न करने बहुत मुश्किल हो जाने थे, आपको कॉपी करना भी उनको बहुत मुश्किल था, इसीलिए मैंने उस लेसन के नहीं भेजे. ओके मैम. ओके मैम. Yes, Aradhya Sharma. Thank you, ma'am. Rupakshi, unmute yourself, please. Yes, Aradhya Sharma. Yes, ma'am. Yes, मैम dear. आपने एक दिन बोला था कि इंग्लिश और साइंस की रीडिंग टेस्ट होना है, तो वो कब होएगा? मैंने अभी जो स्नैप होमवर्क वही चीज मैं अभी भी डिस्कस कर रही थी कि मैंने आप लोगों को क्लियरली इंस्ट्रक्ट किया हुआ है. जैसे ही हमारी क्लास होगी, टुमारो वी आर हैविंग साइंस क्लास, कल हमारी साइंस की क्लास है, मैं आप लोगों को 15 मिनट्स के लिए साइंस की क्लास में ये वाला न्यू पोर्शन पढ़ाऊंगी और उसके बाद में मैं आपको 15 मिनट्स के लिए मैं इंटरनल्स का टेस्ट लूंगी, रीडिंग का टेस्ट लूंगी. साइंस में रीडिंग टेस्ट नहीं है. साइंस में आपका फर्स्ट एक्टिविटी थी वो आप लोगों ने मुझे भेज दी है, और सेकेंड उसमें इंटरनल क्वेश्चंस के टेस्ट होंगे, और वो क्वेश्चंस लेसन नंबर 1 से लेसन नंबर 4 तक मैं पूछूंगी. मैम मेरा फर्स्ट एड बॉक्स आपके पास आया है? अच्छा बेटा, जिसने भेजा मुझे सबका मिल गया, सब बच्चों का मुझे मिला है जिन्होंने मुझे भेजा है. मैम. आराध्या, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. यस, अश्विका.
मैम मुझे 6th चैप्टर अच्छे से, साइंस का 5th चैप्टर अच्छे से नहीं आता है। देखिए बेटा, मैंने आपको कहा पर्टिकुलरली अगर आपको किसी सब्जेक्ट का, देखिए यहाँ पे ना इस टाइम हमारी क्लास में 60 बच्चे हैं, तो मैं 60 बच्चों को वो चीज रिपीट नहीं करवा सकती हूँ जो ऑलरेडी एक बच्चे को समझ में नहीं आई। आप समझ रहे हो ना बेटा मेरी बात? मैंने आपको क्लियरली, मैं हमेशा आप लोगों को क्लियरली ये चीज बोलती हूँ, जिस बच्चे को जो चीज क्लियर नहीं होती है पर्टिकुलर आप बच्चे, गंतव्य आई हैव ऑलरेडी सेंड इट ऑन द स्नैप होमवर्क टुडे मॉर्निंग ओनली। गंतव्य मैंने लेसन नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर्स भेज दिए हुए बेटा स्नैप होमवर्क पे, चेक योर स्नैप होमवर्क टुडे। तो ओके अगर किसी मैम। बच्चे को पर्टिकुलर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है ना, प्लीज आई आस्क यू, मुझे कॉल करिए, मेरे से पूछिए आप लोग, मैं आपको हर चीज डाउट क्लियर करूंगी। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट। ओके मैम। एंड नाउ ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग ओके टू मैम। टीच यू पोर्शन ऑफ T2। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अब जो हम आज से स्टार्ट करेंगे, वो हम पोर्शन स्टार्ट करेंगे T2 का पोर्शन। T1 का पोर्शन आपको पढ़ा दिया गया है, किसी को भी डाउट है यू कैन पर्सनली कॉल मी, आई विल क्लियर योर दैट डाउट, पर्टिकुलर स्टूडेंट इज हैविंग एनी डाउट। तो वो पोर्शन मैंने आपको पढ़ा दिया हुआ है, वो उस पोर्शन में अगर कोई डाउट होगा हम पर्सनली उस चीज को क्लियर करेंगे। और आज से हम चाहे साइंस है और चाहे इंग्लिश है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर T2 पोर्शन, term 2 portion, or we can say that the unit 3rd portion Ma'am, we are I going can to start. Okay, ma'am, I can mute myself. yes, please. So let's start today's lesson. First I'm going to teach you today's lesson. Today I'm going to teach you lesson number 7. All of you open your books in front of you for lesson number 7, first day at school. First day at school. We all are missing these days, we all are missing our school. This is very nice story. This story is from Ladakh, my dear students. ये जो कहानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये एक बच्चे की है. Yes, first day at school. This story is a student of a girl. She belongs to Ladakh. ये एक ऐसी बच्ची की कहानी है जो लद्दाख, हमारे JNK के साथ, पहले वो हमारी स्टेट में थी. Shagundeep will talk about that later, my dear. Fine. This story is about a girl whose name is Jaskit. ये एक रियल स्टोरी है. ये जो कहानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये बहुत बिल्कुल रियल स्टोरी है. ये एक सच में कहानी है एक बच्ची की जो लद्दाख में थी. मैं आप पहले बताती हूँ, उस बच्ची को थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो डिसेबल थी. यू हैव सीन, कुछ बच्चे होते हैं, हम लोगों ने कभी कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जो लोग, हम उन्हें स्पेशली एबल चिल्ड्रंस कहते हैं, जिन बच्चों में प्रॉब्लम होती है या वो प्रॉपरली चल नहीं सकते हैं, उनके हाथ में पाँव में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम रह जाती है. समटाइम्स दे हैविंग प्रॉब्लम इन माइंड ऑल्सो, कभी कभी उनकी सोचने की शक्ति भी हमसे कम होती है. ऐसे बच्चों को स्पेशल चिल्ड्रंस कहते हैं. ये कहानी भी एक स्पेशल चिल्ड्रन की है जिसका नाम था जसकित. एंड शी इज वेरी नाइस गर्ल, वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल. बहुत अच्छी बच्ची थी, पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था उसका. उसके बारे में यस, उसका नाम था जसकित. Here I'm going to show. We'll discuss everything. You all are very eager to know about her. I know. First day at school. This is the name of our lesson. First day at school. This story is written by Sujata Padmabahan. So इन्होंने ये स्टोरी लिखी है. She is the writer of this story. इन्होंने ये स्टोरी लिखी है. She is a trainer, special educator who works with children with different abilities. ये एक एजुकेटर है मतलब बच्चों को पढ़ाते हैं. ये एजुकेटर थी, ट्रेनर थी, जो ऐसे बच्चों को पढ़ाती थी जो स्पेशली एबल या डिसेबल चिल्ड्रन जिन्हें हम कहते हैं, ऐसे बच्चों के साथ ये जुड़ी हुई थी. She has been associated with the work of
Namgle Institution for People with Disability in Ladakh since 2001. ये कहानी 2001 की है. Ashvika, from my side there is no issue. ये कहानी जो है ये 2001 की है, जब ये लद्दाख में काम कर रही थी. जब ये लद्दाख में काम कर रही थी, ऐसे ही बच्चों के साथ ये काम करती थी जिन बच्चों में कुछ ना कुछ स्पेशली एबल चिल्ड्रंस जो होते हैं उनके साथ ये काम करती थी. तो ये कहानी भी लद्दाख की एक बच्ची की है. Actually, this story, The First Day at School, is an extract. उन्होंने एक पूरी किताब लिखी है, Chiskit Goes to School. उसमें से एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट लिया गया है जो आप लोगों के साथ शेयर किया गया है यहाँ पे एज अ स्टोरी. Nobody is good at everything, but everybody is good at something. Find it, focus on your strength. My dear children, हमेशा मैं आप लोगों से ये चीज कहती हूँ, हमेशा मैं आप लोगों से ये चीज बोलती हूँ कि हम लोग हमेशा हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकते. ऐसा नहीं है कि हम में से हम सारे किसी चीज को लेके हम सारे ही परफेक्ट होंगे. कि कोई एक इंसान होगा जो पढ़ने में भी अच्छा होगा, डांस में भी अच्छा होगा, स्पोर्ट्स में भी अच्छा होगा, जो हर एक चीज में अच्छा होगा. ऐसा पॉसिबल नहीं होता है. हम में से कुछ लोग हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग हैं जो डांस में बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग हैं जो सिंगिंग में बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं. तो दीज आर द सेम फील्ड. हम सब हर चीज में अच्छे नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमेशा हमें फाइंड आउट करना चाहिए कि हम किस चीज में अच्छे हैं. हमें उन चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए, हमें उस चीज को अपनी स्ट्रेंथ बना के आगे चलना चाहिए. नाउ आई वुड लाइक टू अनम्यूट Aradhya Mangotra. Unmute yourself, please. Aradhya Mangotra, unmute yourself, dear. Aradhya, are you there? Unmute yourself, Aradhya. Okay, Gantavya Sharma, unmute yourself, please. Yes, ma'am. Okay. What is your strength? First, Aradhya Mangotra. Fine. But बच्चे आप मुझे बताइए, what is your strength? आपको क्या लगता है आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसमें आप बहुत परफेक्ट हो? Ma'am, dancing. You are good in dance. Very nice. And Gantavya, you? Ma'am, sports. You are good in sports. Very good. It's very important, my dear student, that we must know about our qualities, our strengths. हमें पता होना चाहिए कि हमारी इफ्रा इमरान, unmute yourself, please. Ifra Imran, please unmute yourself. Yes, dear. Can you tell me about your strength? आप मेरे को बता सकते हैं आपकी strength क्या है? Ma'am, I'm good in reading. You are good in reading. That's very nice. That's very nice. So, look, I have just unmuted three students of my class now, and I got 3 different ways. मेरे तीनों बच्चे जो थे 3 different चीजों में good है. एक बच्चा डांस में बहुत अच्छा है, एक बच्ची हमारी गंतव्य स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी है, और इफ्रा इमरान जो है वो रीडिंग में बहुत अच्छी है. My dear students, kindly mute yourself. Okay, ma'am. So these are the different strengths. और हर बच्चे में ऐसा नहीं है, अगर कोई बच्चे में कोई प्रॉब्लम भी है ना तो भी उस बच्चे में कोई खासियत जरूर होती है. हमें गॉड ने जब क्रिएट किया होता है इस दुनिया में ना, तो हमें इन सब क्वालिटीज के साथ हर इंसान में एक क्वालिटी डाली जाती है. प्रॉब्लम बस यही होती है कि हम अपनी उस क्वालिटी को पहचान नहीं पाते हैं, और जिस दिन हम उस क्वालिटी को जान जाते हैं, वी आर परफेक्ट इन दैट, क्योंकि हमें इनबिल्ट होती है वो चीज, हमारे अंदर ही होती है वो चीज. So as we go ahead, in this lesson there are few difficult words in the lesson which is related to the Ladakhi language. इस लेसन में कुछ खास वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग हम हिंदी में इंग्लिश में जानेंगे. वो वर्ड्स जो हैं वो लद्दाखी में यूज किए जाते हैं. लाइक अम्मले. अम्मले इज यूज्ड फॉर मदर इन लद्दाखी. मदर को बुलाने के लिए जो यूज लद्दाखी लैंग्वेज में जो यूज होता है वर्ड, उसे हम अम्मले कहते हैं. अब्बले इज फॉर फादर. फादर के लिए जो वर्ड यूज होता है दैट इज अब्बले. दीज वर्ड्स कम इन योर लेसन टुडे. आमची is known as doctor. In Ladakhi language, it is known as doctor.
and Mimile is grandfather. Mimile stand for grandfather. Mimile दादाजी के लिए stand करता है, आमची डॉक्टर के लिए stand करता है, अबाले father के लिए stand करता है और अमाले mother के लिए stand करता है. When usually we meet someone in our family, in friends, we say hello, namaste, sat shri akal, according to our own religion, according to our own languages, adab, some such type of words we use. स्कूल में मिलते हैं तो हम ऑफिशियली कहते हैं गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून मैम, गुड मॉर्निंग मैम. लेकिन अब इस तरह से जो लद्दाखी लैंग्वेज है उसमें अगर हम किसी को ग्रीट करते हैं, जो वर्ड हम ग्रीट करने के लिए यूज करते हैं, दैट इज नोन एज जूले. दैट इज नोन एज जूले. ओके, अगेन आई एम गोइंग टू अनम्यूट फ्यू ऑफ यू. Noreen, unmute yourself please. Yes, Noreen, unmute yourself please. Yes. Noreen, I asked you to unmute. Vandita, unmute yourself, please. Yes, ma'am. Okay. What's the meaning of Mimile in Ladakhi language? अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया मिमिले का क्या मतलब होता है. Right now, I have told you what's the meaning of mimile. Can you explain? It is already displaying on my screen, my dear. You are not seated with your book and notebook. Anagya Bali, unmute yourself. Yes, ma'am. What is the meaning of Jule? Ma'am, like hello. Yeah, Jule is the word used to greet someone in Ladakhi. Okay. Jule एक ऐसा शब्द है जो हम किसी को greet करने के लिए, it doesn't, we are not able to say that it's hello. It's a word that used to greet someone in Ladakhi. Okay? Okay, mute Okay, yourself. Vedahi, unmute yourself, dear. Vedahi, unmute yourself. Yes. Okay. Tell me what is the meaning of Abbali? Ladakhi word of father. Yes, a Ladakhi word that is used for father. Father. Fine. So we go ahead. Hope it is clear. Again, I am going to explain one by one. Ammale stands for mother in Ladakhi. Abale stands for father in Ladakhi. Amchi stands for doctor. Mimile stands for grandfather. And Jule is a greeting in a Ladakhi. Very good, Sambhavi. Your all answers I got and it is correct all. So this is the real picture of that girl. And now they are having movie also. A movie is also made on this story. एक मूवी भी लद्दाख में बनाई गई है जिसका नाम है जस्टिस. उस मूवी का नाम ही जस्टिस है. लद्दाखी लैंग्वेज में वो स्टोरी है, मूवी बनाई गई है और इसी बच्चे से इंस्पायर होकर, इस लड़की से इंस्पायर होकर स्टोरी बनाई गई थी. Joseph woke up early. He looked out of the window in her village of Kitpuyul in Ladakh. Kitpuyul is the name of that village. The apricot trees were in full bloom. Joseph could hear Amale in the kitchen making tea. Today is going to be 9 years old, Joseph's first day at school. She has waited long for this day. Now, in this paragraph, we described about Joseph, her name, the name of the girl of this story is Joseph. She is 9 years old. She is living in a village in Ladakh, and the name of that village is Kitpuyul. Kitpuyul is the name of that village, and the time is of spring season because the apricot trees are in full bloom. It means कि जो apricot के पेड़ थे उन पे पूरी तरह से फूल आए हुए थे, तो
मोस्ट प्रोबेबली स्प्रिंग का टाइम था जब अच्छी तरीके से फूल अच्छी तरह पेड़ों पर आ जाते हैं, फल पकने वाले होते हैं, उनसे पहले जो फूल निकलते हैं उस वो ये टाइम था। सुबह सुबह थी, बहुत अच्छा दिन था, और चुस्की जो थी वो बहुत खुश थी क्योंकि अपनी लाइफ में पहली बार ये लड़की स्कूल जा रही। She is 9 years old and now first time she is going to school. To get to Chusky school, you have to walk to the main road, to take left path, the turn along a narrow stream. You reach the popular trees. You cross the stream by jumping over the big rocks on the sides. A short walk up a slope take you to school. All the children in Chusky's village walk to school every day, but so far Chusky's had not been able to go with them. अब हर रोज जो सारे बच्चे थे वो उस रोड से चल के, क्योंकि वो रोड जो था बड़ा अनइवन सा रोड था। पहले उस रोड पे पहले जो मेन रोड चल के जाना था, फिर उसके बाद में लेफ्ट साइड मुड़ना था, फिर एक नैरो सी स्ट्रीम आती है, छोटी सी नदी आती थी, उसको पार करना था, फिर वहां पर ट्रीज थे उनको क्रॉस करना था, जंप कर करके स्ट्रीम से क्रॉस होके जाना था, बड़ी बड़ी रॉक्स थी उनके ऊपर जंप कर करके जाना था, फिर छोटी सी और वॉक लेनी थी, तब जाके बच्चे वहां के जो चुस्कित के विलेज के बच्चे थे वो स्कूल में पहुंचते थे। चुस्कित के लिए ये चीज पॉसिबल नहीं थी, और चुस्कित कभी स्कूल जा नहीं पाई। चुस्कित कैन नॉट वॉक, शी हैज अ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि इंसान जिसमें कोई भी किसी तरह की लिमिटेशंस होती है। Abale had taken her to village auntie and then to the doctor in Lake, but no amount of medicine had helped her to walk. Whenever Chesky had felt sad and she could not do many things as early as her brother Tobden, Abale would say, "That doesn't matter. You can sit and draw better than anyone." अब वो जब भी उसका भाई स्कूल जाता था या उसका भाई जब पढ़ता था तो उसको बहुत शौक होता था कि वो भी पढ़े, वो भी लिखे, तो लेकिन वो नहीं कर पाती थी, वो क्योंकि उसकी प्रॉब्लम थी, वो डिसेबल थी, उसकी जो टांगे नहीं थी वो चल नहीं पा रही थी, उसकी वजह से वो नहीं स्कूल नहीं जा पाती थी, कहीं पर भी नहीं जा पाती थी। तो उसके पापा उसको डॉक्टर के पास भी लेके, जो वहाँ के डॉक्टर थे उनके पास भी लेके गए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बहुत सारी मेडिसिन खाई लेकिन उसको कोई बेनिफिट नहीं मिला उन मेडिसिन। लेकिन उसके पापा उसे हमेशा मोटिवेट करते थे कि यू आर द बेस्ट वन, आप जो हो आप सबसे अच्छी बच्ची हो, आप सबसे अच्छी बच्ची हो, आप अच्छे से पढ़ सकती हो, तुम अच्छे से टीचिंग कर सकती हो, तुम अच्छे से ड्राइंग कर सकती हो। Today I am going to teach you only this much. Today I am going to teach you only this much. Now, those who are having doubts, please ask me to clear your doubts. Already the students have raised their hands. Sahaj Verma. Unmute yourself, please, Sahaj Verma. Yes, ma'am. Yes, Sahaj. मैम जो मैंने फर्स्ट एड बॉक्स भेजा था। हाँ जी बेटा। मैम हम ईमेल पे नहीं गया था तो आपने व्हाट्सएप पे देख लिया था। ऑफ कोर्स बच्चे, अगर आपने भेजा तो मैंने देखा ही है ना बेटा, मैंने आपको लिख के भी भेजा था। ठीक है मैम। शुबाना अख्तर, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ जी बेटा बोलिए। मैम वो फर्स्ट एड बॉक्स बना के मैम आपको भेजा था, तो मैम वो आपको आगे है। बच्चे मेरी एक बात सुनिए, जिस बच्चे ने मुझे भेजा हुआ है मुझे उन सब बच्चों का मिल गया है, और अगर आपको फर्स्ट एड बॉक्स की क्वेरीज हैं तो प्लीज क्वेश्चंस मत करिए, सब जिस बच्चे ने मुझे भेजा मुझे सबका मिल गया। फर्स्ट एड बॉक्स के लिए अभी मैं इस क्लास में नहीं लूंगी बेटा क्वेश्चन। जिसको भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो मैंने आज पढ़ाया उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है आप बच्चे मेरे से डिस्कस कर सकते हो। बाकी अगर आपने मेरे को भेजा हुआ है मुझे मिल गया हुआ। हाँ जी बेटा। मैम जो मैम आपने अभी लेसन पढ़ाया है। हाँ जी बेटा। मैम पहले हमारी 10 o'clock भी मैम एक क्लास हुई थी मैम, किसी भी बच्चे की मैम वो होनी होती, रिपोर्ट प्रॉब्लम ही आ रहा था बार बार। अभी वाली कनेक्ट हो गई ना बेटा, वो नेटवर्क इशू था उस टाइम पर। ओके मैम।
Radhe Sharma, unmute yourself, please. Yes, ma'am. Yes. Ma'am, what is carefully? Ma'am, what is carefully? Carefully. Carefully का मतलब होता है डरा हुआ. Uneven. Carefully. Uneven जो सही ना हो, ऊपर ऊबड़ खाबड़. Okay, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Fine. Who is the next? Please mute yourself. Ananya, unmute yourself. मैम Yes. मैम मेरे को एक प्रॉब्लम है. जैसे हम लद्दाखी लैंग्वेज में मेमीले को ग्रैंडफादर बोलते हैं, वैसे ही हम लद्दाखी स्लैंग में ग्रैंड मदर को क्या बोलेंगे? Right now I don't know Ladakhi, but I'll let you know in the next class. जब हमारी next class होगी मैं आपको जरूर बताऊंगी लद्दाखी लैंग्वेज में ग्रैंडमदर को क्या बोलते हैं. ओके मैम, थैंक यू. Welcome, बेटा. Ayat, unmute yourself, please. Yes, ma'am. Ma'am, हाँ जी बच्चे. जब आप पढ़ा रहे थे तो पीछे से बहुत शोर आ रहा था, तो क्या आप डिसेबिलिटी जिस किड के नॉट वॉक वाला पैराग्राफ रिपीट कर सकते हैं? हाँ जी बेटा, बिल्कुल कर सकती हूँ. जिसकी जो थी ना वो डिसेबल थी. डिसेबल का मतलब होता है जिस इंसान में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो नहीं चल सकता है, या कुछ इस तरह से प्रॉब्लम जिस इंसान में होती है. तो जिसकी में प्रॉब्लम थी वो चल नहीं सकती थी, इसकी वजह से वो स्कूल नहीं गई थी. 9 इयर्स की भी थी वो, तो भी स्कूल नहीं गई थी. उसके फादर उसे आमची जो लद्दाख में डॉक्टर थे उनके पास लेके गए थे, लेकिन उन्हें फिर भी कोई प्रॉब्लम, वहां पे भी कुछ क्लियरिटी नहीं हुई, वहां पे भी वो ठीक नहीं हो पाई. तो जब भी उसका भाई पढ़ता था तो उसे बहुत दुख होता था. उसे दुख होता था कि वो नहीं पढ़ पाती, लेकिन उसके फादर उसे हमेशा मोटिवेट करते थे कि अगर तुम स्कूल नहीं जा पाती हो, लेकिन तुम बहुत अच्छी स्टिचिंग कर सकती हो, तुम बहुत अच्छी ड्राइंग कर सकती हो. थैंक यू मैम. वेलकम डियर. Ashwika Gupta, unmute yourself, please. Ma'am, what is the meaning of disability? Disability is, my dear, is a handicap which limits a person's movement. कुछ भी ऐसी तरह की handicap जो होता है, जो इंसान की disability किसी भी तरह की handicap जो होता है ना, वो किसी भी तरह का हो सकता है. जरूरी नहीं कि वो चल ना सके. Disability में किसी की बाजू काम नहीं करती है, वो भी आ सकता है. एंड मैम, जो आप बोल रहे थे कि एक छोटी सी जगह थी जहाँ पे बच्चे जंप करके रिवर को क्रॉस करके जाते थे, तो हाँ, स्ट्रीम थी. तो जहाँ से बच्चे उस स्ट्रीम को जंप करके क्रॉस करके जाते थे. ओके मैम, थैंक यू मैम. हरमनजोत, unmute yourself. Yes ma'am. Harmanjot, fast, my dear. I have put the queries of all the students. Ma'am, what is the meaning of carefully? What's the meaning of Carefully. fearfully? मतलब डरा हुआ. Ma'am, and the level. And Level. where is this level, my dear? Ma'am, what meaning? तो मैं वही तो मैं पूछ रही हूँ ना बच्चे, कहाँ पे है लेवल? Ma'am, second page इवन ये हम बेटा अभी हम वहाँ पहुंचे. लिसन टू हरमनजोत, जहां तक मैं पढ़ाती हूँ ना बच्चे, मेरे को वहीं तक ही क्लियर होते करो. जब मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगी मैं आपको वो वर्ड्स क्लियर कर दूंगी. ओके मैम. ओके, जो मैंने आज आपको वर्ड्स पढ़ाए हैं मैंने उतने ही आपको क्लियर किए. ओके. सुमैया, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज. सुमैया, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज. मैम, मैं आपको अपने आप को म्यूट कर दूं? यस प्लीज. सलीना, अनम्यूट योरसेल्फ. सलीना, अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, Selena. Excuse me, ma'am.
Yes. Excuse me, ma'am. Excuse me. Yes. Ma'am, what is cheerfully? Cheerfully means डरा हुआ. Thank you, ma'am. Sambhavi, unmute yourself. Yes, ma'am. Sambhavi, yes, unmute yourself. Ma'am, what is the meaning of disability? बच्चे disability is disadvantage और handicap which limits a person movement. ऐसी कोई भी तरह की प्रॉब्लम जो किसी इंसान को मूव करने से रोक सकती. ओके मैम. एंड मैम मुझे ये सेकंड पैराग्राफ समझ नहीं आया. सेकंड पैराग्राफ में कुछ भी नहीं है. फर्स्ट पैराग्राफ में चस्कित के विलेज के बारे में, चस्कित के बारे में बताया गया. सेकंड पैराग्राफ में बताया गया उसके स्कूल का रास्ता कैसा था. वो बताया गया कि वो बिल्कुल पहले उसे सीधा रोड में चलना था, फिर लेफ्ट पाथ लेना था, फिर एक छोटी सी स्ट्रीम आती थी, उस स्ट्रीम के ऊपर से जंप कर करके बिग रॉक के ऊपर जंप कर करके क्रॉस करना था, फिर एक शॉर्ट रास्ता लेना था, स्लोप वाला था, वो लेके फिर चस्कित का स्कूल आता था. थैंक यू मैम. Manpreet, unmute yourself, please. Ma'am, Yes. ma'am, what is the meaning of disability? बेटा डिसेबिलिटी कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम जिससे किसी इंसान को मूवमेंट में मुश्किल हो. क्लियर? Ma'am, यस. ma'am, I can't hear you well. फ्रॉम माय साइड मनप्रीत देयर इज नो प्रॉब्लम आई डियर. डिसेबिलिटी का मतलब होता है ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जिससे किसी इंसान को मूव करने में मुश्किल हो, मूवमेंट में मुश्किल हो. Okay, thank you, ma'am. आलिया चौधरी, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज. Ma'am, यस. ma'am, what is the means of चुस्किट? हाँ जी बेटा बोलिए. चुस्किट इसका means क्या होता है? चुस्कित इज द नेम ऑफ अ गर्ल. चुस्कित, चुस्कित एक नाम है बेटा. आपका नाम आलिया है, एक बच्ची है लद्दाख में, उसका नाम चुस्कित है. Okay, ma'am. इट्स अ नेम. Okay, ma'am. सुमैया, अनम्यूट योरसेल्फ. क्या पता वो 2 बजे बोला. किताब निकाल सुमैया. यस सुमैया. Ma'am, मैंने ना थोड़ी लेट यस. मैंने थोड़ी लेट ज्वाइन की क्लास. हाँ जी बेटा.